आज कासाब्लांका पहुंचा, जो कि वेस्टर्न अटलांटिक कोस्टल लाइन पर वाक़या मोरक्को का एक पोर्ट सिटी है। बहुत से टूरिस्ट मराकेश से होते हुए फैज़ या तांजीर को पहुंच जाते हैं कि जो टूर से खचाखच भरे रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मोरक्को की ऑथेंटिक लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए कासाब्लांका को देखा जाए। 19वीं सदी में कासाब्लांका तकरीबन 50 साल तक फ्रेंच कॉलोनी रहा, जिसमें आपको मोरक्कन और यूरोपियन दोनों तरह का तर्ज तामीर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 15वीं सदी के मदीना ओल्ड टाउन से लेकर मॉडर्न तर्ज की यूरोपियन बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। यही सब देखने मैं पहुँचा हूँ कासाब्लांका, जहाँ पर यहाँ की लोकल सारा मुझे और आपको ये शहर दिखाएंगी। मैं हूँ कासाब्लांका में और यहाँ पर मुझे कासाब्लांका दिखाएंगी सारा। बहुत शुक्रिया इनका। तो हम आए हैं खबूस में, जो कि फ्रेंच टाइम का बाज़ार है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक मोरक्कन कपड़े, जूते और खाने पीने और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर तरह की अशिया मिलेंगी। सारा हमें डिटेल में इसके बारे में गाइड करेंगी। This is called the jalaba. It's a traditional outfit for men. With the hood? With the hood, yeah. With the hood is called jalaba. Without it's kaftan. Kaftan. It's a man usually. This design is for men. I'm going to show you the one for women. Yeah. And this is a balgha. This is balgha? leather. Yeah, this is the traditional one. It's leather and so usually. Yeah, I noticed. So I've seen a lot of leather products in Marrakesh. Is it the same here? Yes. Yeah, we have. Marrakesh probably has more leather products, but we do have a leather market in here as well. We're gonna go there. These are also. See how these are different than the balghas I showed you, than the ones made in France. Oh, okay. These are proper Amazigh. Your maternal family here. Yes. And this is more bronze, right? Yeah, it's for cooking, very traditional, old, and you can have this for. So yeah, tray. The serving tray. Yeah, some of them are, you can find some of them are silver. For example, this one I think is silver. In Marrakesh, if I was doing this, it would have been a big fight already. People here are usually more or less nice. Yeah. More or less. More or less. Yeah, because you never know with Moroccans. Yeah, but it's way better than Middle East. Oh. These are proper. Carpets. Yeah. So that's the traditional. Yeah. In the Amazigh region, they used to communicate through signs in the carpets. These signs they actually mean something, and people used to communicate with it. Oh, with these signs. They still use it? Or? Not anymore. No, it's just part of the history. Oh, okay. But this is more like the signs still means something. Yeah, but nobody knows what does it mean. Yeah. But these are quite common. I don't think that's handmade. And even people used to, because tattoos are a big part of the Amazigh culture. Okay, it used to be. No, it still is, because when the Arabs came, they so it was when Islam came and the Arabs came and brought Islam. That was kind of the first things that they eradicated. But you still find when you go to any Amazigh region, you're gonna find old ladies with tattoos in their faces. On the faces? Yeah, on the faces, and that's how it means. You can tell which tribe they're from and whether they're married or not, depending on the tattoo they have on their face. So it's also sort of communication people used to. This is the market. Wow. नॉर्थ अफ्रीका में और मराकेश में ख़ास तौर पर जैतून बड़े पैमाने पर काश की जाती है। जैतून का तेल यहाँ के खानों में इस्तेमाल होता है। तो हम आए हैं यहाँ पे खबूस एरिया में, जो ऑलिव मार्केट है उसमें। यहाँ पर आपको जैतून का अचार, फ्रेश जैतून की मुख्तलिफ़ अक़साम और इससे बनी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे दामों मिलेंगी। This is called the jalaba. It's a traditional outfit for men. With the hood? With the hood, yeah. With the hood is called jalaba. Without it's kaftan. Kaftan. It's a man usually. This design is for men. I'm going to show you the one for women. Yeah. And this is a balgha.
This is Balkha? leather. Yes, this is the traditional one. It's leather, and so usually. Yeah, I noticed. और इनके जूते बलख को यहाँ पर उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी कि पंजाब में खेड़ियों को और KPK में चारसद्दा की चप्पल को हासिल है। What about cafes in general, like in the touristic areas? This is a touristic area, I believe, too. Downtown, some of the cafes downtown are open during the day for tourists. Okay, because in Marrakesh everything was open. Yeah, Marrakesh is different. So you can find food during the day, but you cannot find sahur. Right? So yeah, that's It's very what about here? international cities. What about here? You can find sahur or not? Here you can find it, and this now this is The teapot. Okay, yeah. So here you can find both. If you want food during the day, you can Uh-huh. find it. If you want Maybe sahur, you you look can find fun. it. I get something with 100 dirham. This is one of the oldest bakeries and Ah. Moroccan sweets makers in the region. You can go inside actually. Uh-huh. It's called the shabakia. Shabikia, yeah, I had it every day. And this I is told you jalebi. you're more Moroccan than No. मोरक्को में अफ्तार के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्वीट ख़ास तौर पर शबाकिया खाया जाता है, तो मैंने भी कहा ये इनकी ऑथेंटिक शॉप है, इससे थोड़ी स्वीट्स लेते हैं। तो ये अफ्तार के लिए हम ले रहे हैं। मोरक्को में जगह जगह पर आपको ये चीज़ नज़र आएगी जिसे जलीश बोलते हैं, एक आर्ट स्ट्रक्चर के अंदर खूबसूरत टाइल्स और वाटर टैप, जहाँ से पुराने वक्तों में लोग पानी लिया करते थे। Very big library, museum, traditional hammam, none of that. It's a very big. So it's a big complex, not just a mosque but many other things. ये नॉर्थ अफ्रीका की दूसरी बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे झगड़ा चलता रहता है इनका कि ये दूसरी है या तीसरी है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ये 14वें नंबर पे है बड़ी मस्जिद। तो हसन II जो बादशाह थे उन्होंने बनवाई। ये इस्लामिक म्यूज़ियम और लाइब्रेरी मस्जिद के बिल्कुल सामने वाक़ है। बहुत तेज़ हवा चल रही है इस वक्त, और ये जी मीनार देखें, जाइंट मीनार, इसका 270 तकरीबन मीटर हाइट इसकी है। तो अभी जी इंटरेस्ट पे हूँ मैं, असर का टाइम है और यहाँ पर ये मर्दों का एरिया है और दूसरी तरफ ख़वातीन का एरिया है और नमाज का टाइम है, तो नमाज़ पढ़ता हूँ। मस्जिद हसन बादशाह हसन दोम की 60वीं सालगिरह की खुशी में बनाई गई, जो कि मूरिश और मॉडर्न डिज़ाइन का हसीन इम्तजाज है। जामे अल-जज़ायर के बाद ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी मस्जिद है। इस हाल में तकरीबन 25,000 लोग बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं, जबकि बाहर के सेन में मज़ीद 80,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। बैक वक्त
1,05,000 नमाजी यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। में और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ वो ये है कि यहाँ पर मैंने और भी मसाजिद में देखा, लेकिन यहाँ पर ये है सामने इन्होंने चादर रखी होती है मोटी सी या लेदर की, तो इसके ऊपर आप अपने सामान रखें, जूते वगैरह, और इंटरेस्ट पे आपको ये बैग मिल जाता है और इस पर रखें और आपका ध्यान नमाज पे रहता है बजाय कि अपनी चीज़ें के कि कोई चीज़ उठा तो नहीं लेके गया। ये भाई ने इधर रखा है। यहाँ पे मिंबर जो है वो ऊंचा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्टर्न या टर्किश मसाजिद के। मस्जिद की छत पर आपको खूबसूरत लकड़ी का काम नज़र आएगा और ये सारा काम करने के लिए मोरक्को भर से माहिर तामीरात को बुलाया गया और उन्होंने मिलकर ये शानदार और ख़ूबसूरत मस्जिद तैयार की। मैंने दुनिया भर में बहुत ही खूबसूरत मसाजिद देखी हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ख़वातीन के लिए यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस है और ऊपर इनके लिए बहुत ही खूबसूरत, और पूरी दुनिया में ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह हैं, बस एक पाकिस्तान है जहाँ पे नहीं है। तो ये है जी इसका बहुत ही बड़ा दरवाज़ा और ऊपर नेट लगाया गया है परिंदे ताकि अंदर ना जाएं और गंदगी ना करें। इस वसी मस्जिद और ख़ूबसूरत मस्जिद की तमाम डिटेल इस छोटी वीडियो में बताना मुश्किल है, तो इसमें हम डिटेल एपिसोड करेंगे। तो अभी चलते हैं हम न्यू कासाब्लांका एरिया में। कासाब्लांका, यहाँ पे आए पिक्चर बनवाएं। तो यहाँ पे स्क्वायर में, लेन स्क्वायर में कबूतरों को दाना डालें और पिक्चर्स बनवाएं। आज बारिश है तो थोड़ा बहुत ऑफ कलर है कासाब्लांका। कल बहुत ज़बरदस्त मौसम था। तो आपको पूरी लाइन वाइट बिल्डिंग्स की नज़र आ रही है और इसकी एक वजह है कि कासाब्लांका के मतलब में वाइट आता है, तो ये चाहते हैं कि सारी बिल्डिंग्स को वाइट कर दिया जाए। लोग इतना भाव नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट की यही ख्वाहिश है कि ज़्यादातर शहर सफ़ेद रंग का ही पेंटेड हो, और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जो कि सफ़ेद रंग में पेंट की गई है। आज मंडे है लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानें आपको बंद नज़र आ रही होंगी। कल मैं आया था, संडे था, मैंने समझा कि ज़्यादातर दुकानें संडे की वजह से बंद हैं, लेकिन अभी मुझे अंदाज़ा हुआ है कि, और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, वो रमज़ान में वो लोग रेनोवेट करते हैं। जिसने भी रेनोवेट करनी है वो रमज़ान का महीना चूज़ करेंगे क्योंकि बिज़नेस लो होता है दिन के टाइम। और दूसरा ये है कि खाने पीने की दुकानें जो रेनोवेट नहीं भी कर रहे वो दिन को बंद रहती हैं। यहाँ पब्लिकली खाना अलाउड नहीं है और इस पर आपको ये हवालात के अंदर भी कर सकते हैं अगर आप खाएंगे तो, लेकिन टूरिस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं। अगर टूरिस्ट हैं
तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लोकल्स के लिए ये प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब अगर आ रहे हैं मराकश में तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो तो बिल्कुल टूरिस्ट है, वहाँ तो रमज़ान का पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ कासाब्लांका में आपको फील होगा रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ बंद हैं, जो खुले हैं शाम के वक्त अफ्तार के बाद, उससे पहले नहीं। और ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें फ़्रेंच टाइम की हैं, फ्रेंच कॉलोनियल टाइम की हैं। और आप देख सकते हैं कि आपको वेस्टर्न यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल मिलेगा। और उसकी वजह ये थी कि ये जो मेन डाउनटाउन का एरिया है कासाब्लांका का, दैट वाज द फोकस कि यहाँ को इसको ज़्यादा फ्रेंच रंग दिया जाए। तो यहाँ पे फिर उस वक्त इमारतें बनाई गई उस दौर की, और आपको उसकी झलक अभी भी दिखती है। तो उसी स्टाइल की इमारतें हैं यहाँ पर। तो जैसे मराकश से भी आपने देखा कि यहाँ की जो फेमस डिश है वो ताजीन है। ये ऑथेंटिक वे में बनाई जा रही है यहाँ पर कोल के ऊपर, और साथ साथ मीठा यहाँ पे हलवियात इनको बोलते हैं, वो मशहूर है। तो दो चीज़ें यहाँ आप आएंगे तो आपने ट्राई लाजमी करनी है। कासाब्लांका ज़िंदगी से भरपूर एक शहर, where people are humble and thriving to keep their tradition alive। कासाब्लांका में मेरा एक पूरा दिन बारिश की नज़र हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। 2 दिन में कासाब्लांका जैसा वसी शहर घूमना मुमकिन नहीं, लेकिन खुदा की ज़मीन वसी है और सफ़र जारी है। वीडियो ख़त्म करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सारा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें ये शहर दिखाया। अगली मंजिल ट्यूनिस है, साथ रहिएगा। बहुत दुआओं के साथ, खुदा हाफिज़।